ओके। सो आप टैलेंट राउंड के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जो आगे आने वाले हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आपको वर्चुअली कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ वर्चुअली? मैंने बहुत लोगों को ऑडिशंस में हमने रिमाइंड किया है दैट योर कैमरा इज नॉट सेट प्रॉपर्ली, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। सो हाउ कैन यू आप मीन्स खुद को ऑफलाइन प्रेजेंट करने में एंड खुद को वर्चुअली ऑनलाइन प्रेजेंट करने में बहुत डिफरेंस है। ऑफलाइन में यू आर अवेयर, आपको स्टेज पे जाना है, यू हैव टू परफॉर्म, जूरी मेंबर्स आर गोइंग टू जज यू। लेकिन वर्चुअली अगर आप कंप्लीटली विजिबल नहीं हो, अगर आपका मेकअप अच्छे से नहीं दिख रहा है, अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, all of this comes under one category, that is our virtual presence. That is why I say that complete selection process for Pride of India 2024 is mostly virtual. So first guys, you need to understand that how can you improve your virtual presence. आप कैसे खुद का virtual presence improve कर सकते हो? Now the steps is first is registration, audition, participation, training sessions, talent rounds before city finale, right? ट्रेनिंग सेशंस आपके वंस इन अ वीक होंगी। पहले होता है आपका बेसिक ट्रेनिंग्स, उसके बाद वंस यू आर क्वालिफाइड, आप ट्रेनिंग सेशन क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपकी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेशंस स्टार्ट होती है एट अ डिफरेंट लेवल, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज सेशंस। उसके बाद कमिंग टू द टैलेंट राउंड्स, अबाउट दिस टैलेंट राउंड्स विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल कि हर एक टैलेंट राउंड में आपको किस बेसिस पे जज किया जाएगा। Because when you appeared for audition, we told you that only and only if you are passionate about being here on the platform, you will be shortlisted. It does not matter whether you have an experience or you do not have an experience with respect to this industry. We will be selecting you purely on the basis of your passion. But now that we are preparing you, in your next session, your image consultant are going to train you, they're going to help you that, how can you present yourself efficiently. आप कैसे खुद के बारे में बात कर सकते हो एक क्लैरिटी के साथ। मेकअप कंसल्टेंट आएंगी, आपको बेसिक मेकअप सिखाया जाएगा कि आप जल्दी में खुद का मेकअप कैसे कर सकते हैं। इफ यू हैव टू ड्रेस फॉर अ रैंप वॉक, हाउ यू शुड बी डूइंग योर मेकअप। Ramp walk expert is going to clearly explain you practically, everything regarding ramp walk. So gradually आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, लेकिन हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद आपके टैलेंट राउंड्स होंगे जिसमें on the basis of your presentation, the way you are presenting yourself, the way you are dressed up, and how confident you are in your presence skills, the juries and other members are going to judge you. And at the end of these 3 talent rounds, which means आपको 3 chances दिए जाएंगे अपने आप को prove करने के लिए। इन तीनों talent round के बाद we will be shortlisting city representatives, एंड उसके बाद इन्हीं सिटी रिप्रेजेंटेटिव से हम स्टेट फाइनलिस्ट का सिलेक्शन करेंगे। यानी यहां तक का आपका कंप्लीट प्रोसेस वर्चुअल होगा। Of course, towards the end, if you're if you become city winner, you would be coming to Delhi for state level. आपको दिल्ली आना होता है, 3 days का stay होता है, and you'll be crowned as a celebrity. यानी कि ये इवेंट आपकी ऑफलाइन होने वाली है, because you have to act like a celebrity from day one. Of course, because the media is going to be there, national TV channels are going to be there, the other winners are going to be there. The trainers are going to help you in identifying your strength and amplifying them. Now, as I've already mentioned that in each of the talent rounds, you will be judged on the basis of various skills and various talents. So please do not compare yourself to each other. आपको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतना अच्छा रैंप वॉक कर रही है और उसका ड्रेस इतना प्यारा है, उसके स्टिल टॉस अच्छे हैं, उसने मेकअप अच्छा किया है। ऑल ऑफ अस आर यूनिक ह्यूमन, and trust me, Pride of India is going to support you in embarrassing your uniqueness. And one more important thing, आपको हर टैलेंट राउंड में जूरी मेंबर स्कोर करेंगे 1 to 10, एंड वो स्कोर्स आप तक पहुंच जाएंगे। फर्दर आपकी टीम मैनेजर आपको कंफर्म करेंगे वेदर यू आर सिलेक्टेड एज अ सिटी रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। ओके, सो नाउ आई वुड एक्सप्लेन ऑल दिस टैलेंट राउंड्स इन डिटेल्स, एंड आपको टैलेंट राउंड की एक पीडीएफ भी शेयर की जाएगी जिसमें प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, तो आप इतना पैनिक ना हो, क्योंकि आपको उसमें प्रॉपर्ली मेंशन है आपको किस चीज पे यू हैव टू प्रिपेयर इन ईच टैलेंट राउंड। ओके, सो हर ट्रेनिंग सेशन में एज वी मूव फॉरवर्ड हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे।
सो राइट नाउ आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ताकि आपको एक आइडिया हो जाए ऑफ व्हाट द प्रिपरेशन नीड टू बी डन फॉर. सो सबसे पहले तो लेट मी क्लियर योर बबल्स हियर. आप अपने फ्लैट्स एंड अपने स्नीकर्स को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है. नाउ इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट योर लवली हील्स. सो देर इज नो escape, you know, इससे आप भाग नहीं पाओगे. This is something I'm giving you an honest advice on. You know, stilettos are necessary. No shoes, no sneakers, no wedges. Now only and only stilettos and pencil heels. And pencil heels minimum 3 inches and maximum 6 inches. So please make sure that you invest your money in buying a good heel. Try to purchase a color जो आपके हर outfit के साथ चला जाए. It could be black, sorry. It could be a good shade of, you can go for nude color, peach color. I think black, nude and peach, these three colors, I think it's evergreen color. It can, you know, आप किसी भी dress पे wear कर सकते हो. Is that clear? So किसी भी skin tone color की heels या black heels आपकी किसी भी dress पे match हो जाएगी. Minimum आपको थ्री, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि यू हैव टू गो फॉर 6 इंचेस, कोई कंपलसरी नहीं है. मिनिमम यू कैन स्टार्ट विद 3 इंचेस. आप 3 इंचेस से स्टार्ट कीजिए, बहुत टाइम है. प्रैक्टिस, सी यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है स्टिलेटोज में फॉर दोज हु आर वेरी न्यू इनटू दिस फील्ड. एंड यस, आपको रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी जाएगी, बट वो ट्रेनर्स इसी पर्सपेक्टिव के साथ आते हैं कि आपको हील्स में एटलीस्ट चलना आता हो. यू नो, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो अगर मैं रियलिटी पोर्ट्रे करूं, so you have to start practicing from now onwards, and daily कोशिश कीजिए, you have to walk in heels. Okay, so trust me, gonna help you. So eventually आपके trainers भी जब you know on board आएंगे, आपको beginner level पे भी अगर वो teach करे, तो आपको basic makeup आना चाहिए, sorry basic heels में चलना आना चाहिए. And सारी चीजें आपको एक बेसिक जो क्लासेस अभी स्टार्टिंग में दी जाएंगी, आपके टैलेंट राउंड्स में उसी बेसिस पे फर्स्ट आपको जज किया जाएगा. सो आपको हर चीज के रिगार्डिंग एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. एंड यू नो, हील्स में रैंप वॉक करने में एंड हील्स में चलने में बहुत डिफरेंस होता है. एंड दैट इज वेयर यू नीड टू बी प्रिपेयर, बिकॉज आई नो काफी लोगों की माइंड में हो रहा होगा कि मैं तो हील्स में चल सकती हूँ, बट हील्स में रैंप वॉक करना इज डिफिकल्ट थिंग. Okay, so these are some points that you need to keep in mind. And when I say stilettos and pencil heels, it's directly no for wedges and block heels. Mrs. category 35 or 40 plus, Mrs. category can go for block heels. If you are 40 plus, आप block heels you know prefer कर सकते हो. But 35 से नीचे जो भी age है, it's directly no for wedges or block heels. Only stilettos or pencil heels. Okay, so I hope that is clear. अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए होंगे, प्लीज आप अपने अकाउंट मैनेजर के टच में रहना. वी विल शेयर सम रेफरेंसेस. बट अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, तो जो पेंसिल हील्स होती हैं, सिंपल इट वुड बी 3 to 6 inches. You know, why do I say this? I didn't mean to scare you, because this is reality. इससे आप भाग नहीं पाएंगी. And I want you guys to be very very sure that you're going to do this. Okay, and ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको कोई सिखाए उससे पहले you know आप खुद उसे ऑनबोर्ड कीजिए, ताकि जब ट्रेनर्स आए तो उन्हें यू नो पहले, उससे पहले ही आप खुद मेंटली प्रिपेयर रहे. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द टैलेंट राउंड्स नाउ. सी व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन हील्स? बिकॉज हर राउंड में, हर टैलेंट राउंड में रैंप वॉक प्लेज अ लीड रोल. फर्स्ट रैंप वॉक आपने की थी ऑडिशन राउंड में, बट दैट इज 1% ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ. Okay, so let's start with talent round 1. I would highlight a few points. Dress code. Dress up according to your personality. Casuals नहीं होने चाहिए, because you are on a platform जिसपे आपकी dressing sense को importance दी जाएगी. Right? It will be noted and appreciated. And मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रही कि यही एक टाइप की ड्रेस कोड पहनना है. You know, it has to be presentable. आपके अकॉर्डिंग आपको आपको जो लगता है कि आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है, थोड़ा यूनिकनेस रखता है, यू कैन गो फॉर दोज ड्रेसेस. ओके, सो बिकॉज एवरी टाइम यू कम ऑन द स्क्रीन यू आर बीइंग नोटिस्ड. हमारी टीम मेंबर्स हर टाइम आपको नोटिस कर रहे होते हैं. सो ड्रेस अप बेस्ट. टॉक अबाउट योर एस्पिरेशन. व्हाई डू यू वांट टू विन द क्राउन? उसी क्वेश्चन को थोड़ी और क्लैरिटी के साथ आप एड्रेस करोगे, बट इट हैज टू बी एलैबोरेटेड. कुछ लोगों ने बोला था ये आपका सपना है, आपका ड्रीम है, लेकिन ये आपका ड्रीम क्यों है? You know, so talk about your aspiration with clarity about where do you want to see yourself with crown. आप क्राउन के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? Secondly, highlight details about your idol.
आपकी जो भी इंस्पिरेशन है इस फील्ड से रिलेटेड, यू कैन नेम एनीवन, इवन फील्ड से आउटसाइड भी, क्योंकि यू नो व्हेन वी से योर आइडल, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, एनीबडी कैन बी योर आइडल. गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ. गाइस अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, एंड आप लोग यू नो अनम्यूट कर रहे हो. स्टे ऑन म्यूट. ओके. सो पहले आप अपने एस्पिरेशन के रिगार्डिंग बात करोगे, सेकेंडली आप अपने आइडल के बारे में बात करोगे. यू हैव टू जस्ट मेंशन देयर नेम एंड व्हाई आर यू इंस्पायर्ड बाय देम, दैट्स इट. एंड रैंप वॉक टुवर्ड्स द एंड. अगेन एंड में आप रैंप वॉक करोगे एंड जूरी के साथ आपका इंटरेक्शन होगा. सो आफ्टर ऑल योर यू नो आफ्टर योर टैलेंट राउंड इज डन, जूरी विल कनेक्ट विद यू. नाउ अ सेकेंड टैलेंट राउंड, ये फर्स्ट टैलेंट राउंड हो गया आपका. जो फर्स्ट टैलेंट राउंड होगा, टोटल 3 टैलेंट राउंड हो गए. I'm clearly speaking to everybody. अगर कोई क्वेरी होगी आप एंड में यू आर गोइंग टू आस्क मी. राइट समवेयर, कहीं भी आप नोट्स में लिख लो. अभी कोई भी क्वेरी आप एंड में मुझसे पूछोगे. सी गाइस, आई डोंट वांट कि कोई भी आगे जाकर टीम मैनेजर से इसके रिगार्डिंग कांटेक्ट कर रहा है. अगर मैं यहाँ पे यू नो हम मैं अपनी इतनी एनर्जीज के साथ अगर आपको बता रही हूँ, आपको सुनना है एटलीस्ट. यहाँ जो भी यू नो आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी क्वेरीज को क्लियर करेंगे यहीं पे, राइट. कोई भी क्वेरी होता है, मेक श्योर कि आप मुझसे पूछोगे. एंड एवरीबडी प्लीज मेक श्योर कि ये 3 टैलेंट राउंड्स आपको क्लियर होने चाहिए. इसके रिगार्डिंग आगे जाकर हमारी टीम मैनेजर आपकी हेल्प बार बार नहीं करेगी, यू नो, क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं भी यहाँ पे बहुत बार बताती हूँ एंड देन हमारी टीम से कंटिन्यूअसली लोग पूछते हैं मैम आगे क्या, आगे क्या. मेक श्योर कि इन चीजों में प्रॉब्लम ना आए. आप यहाँ सुनो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दिस वाज योर फर्स्ट टैलेंट राउंड. नाउ सेकेंड टैलेंट राउंड के बारे में अगर बात करें, आपको यू हैव टू शोकेस योर टैलेंट. इट मीन्स आप कोई भी अपनी एक टैलेंट शोकेस कर सकते हो, बीच डांसिंग, बीच सिंगिंग. आपको जो लगता है आपके अंदर जो टैलेंट है. इफ यू आर नॉट गेटिंग, अगर आपको लग रहा है कि मुझ में आपको कोई यू नो अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन रिप्रेजेंट योर आइडल. आप अपने आइडल को रिप्रेजेंट कर सकते हो. जिस आइडल को आपने फर्स्ट टैलेंट राउंड में जिनका नाम लिया था, यू कैन रिप्रेजेंट हर by any such thing, by dress up, by you know song, or by dancing, by any such thing you can represent her. Got it? So you have to showcase your talent in your second talent round. And yes, ramp walk towards the end में आप ramp walk भी करोगे. Now third talent round में you have to represent your city, your state, basically your state. For example, अगर आप गुजरात से हो, you can represent your state by wearing वहाँ का जो you know बेसिक सा जो ड्रेस होगा, बेसिकली वहां का जो कल्चरल ड्रेस है आप वो वियर कर सकते हो. वहां का डांस आप शोकेस कर सकते हो. यू हैव टू रिप्रेजेंट योर स्टेट बाय एनी फॉर्म, डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू. आपको अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है बाय सॉन्ग, बाय एक्टिंग, बाय डांसिंग, बाय ड्रेस अप, बाय एनी सच थिंग. ओके. हमें देखकर यू नो लगना चाहिए ओके शी इज फ्रॉम देयर, ये अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दीज वर योर 3 टैलेंट. एंड यस, एंड में यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर रैंप वॉक आल्सो. ओके. सो इसमें दो चीजों को आपको यू नो इन सभी टैलेंट राउंड में दो चीजों में आपका प्राइमरली जज होता है. फर्स्ट इज योर मेकअप, सेकंड इज योर रैंप वॉक, थर्ड इज योर टैलेंट, एंड ऑफ कोर्स योर अटायर, एंड अगेन इंटरेक्शन विद द जूरी मेंबर्स. You know they'll connect to you according to your performance. So why you get few of them are nervous at the end. Just don't get nervous. हर talent round से पहले आपकी training sessions जो होती है उसमें आप clear कर सकते हो. अभी भी you have to make sure कि आप सारी चीजें clear कर लो जो भी queries है. And yes, one thing as I said, coaching सभी को same मिलती है, but winners बनने के लिए self study is very important. अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एंड आई थिंक यही इंसान की अलग क्वालिटी होती है जिससे आप अपनी एक पहचान बना पाते हो. यू नो यू नीड टू प्लान. आपको प्लानिंग की बहुत जरूरत है कि आप बाकियों से अलग कैसे कर सकते हो. आपको 3 चांसेस मिलने वाले हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए. सो प्रेजेंटेशन एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, आपके साथ पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड कोई भी डाउट होगा तो आप अपने टीम मैनेजर को कांटेक्ट करना है. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू हियर, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ. नाउ ये 3 टैलेंट राउंड्स के बारे में हो गया. So in all this, your virtual presence matters a lot. Okay, so there are a lot of things you know you need to take care about while we are talking about your virtual presence. First and the most important part is to sustain your energy.
आप किस एनर्जी लेवल से अपने आप को ऑडियंस के सामने दिखाना चाहते हैं। हर पार्टिसिपेंट का एक अलग एनर्जी लेवल होता है, लेकिन उस एनर्जी लेवल को सस्टेन, यू कैन से उसे मेंटेन करने के लिए वी हैव टू टेक द राइट न्यूट्रिशन। एंड यस, ये आपके लिए प्रिपरेशन है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय कंटेस्टेंट्स कि आप एक बनाना खाकर आए, या ड्राई फ्रूट्स खाएं, या ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। Because every training session and before every training session या every talent round, even ट्रेनिंग सेशन ही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये 10-15 दिन में खत्म होने वाला है। दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, एटलीस्ट 3 to 4 months आपको लगेगा ये सारी चीजें डिटेल्स में सीखने में। सो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारी एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहे। उससे ग्रेजुअली क्या होगा, जब आप लास्ट में फिनाले में आएंगे, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, सो हमें यही सोचकर आगे बढ़ना है कि आप अपने सिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो अगर आप अपने सिटी को रिप्रेजेंट करके यहाँ दिल्ली में आते हो, 2-3 days आपको यहाँ रहना होता है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली 5-6 hours तक प्रैक्टिस होते हैं, रिहर्सल्स होती है, राइट। एंड वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन होगी। सो टुडे ऑनवर्ड्स मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द राइट न्यूट्रिशन। डाइटिशियन आएंगे जो आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे। प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस। ओके, सो लेकिन आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, सो सेकंड इज स्टेबिलिटी ऑफ कैमरा। Your camera should be stable. As I've told, a lot of people have told you a lot of times in audition round, आपका camera move करता है, your camera is not stable. Trust me, it is very distracting for the audience and jury. So please make sure कि आप अपना camera proper stable रखें, एक setup करें, keep it on a table or a proper camera stand. What happens, आपकी जो talent rounds होने वाले हैं, it's going to be recorded. वो proper record होती है, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग हैं जो फर्दर विनर्स बनने वाले हैं। सो व्हेन यू आर द विनर, वो आपकी रिकॉर्डिंग्स मीडिया में भी भेजी जाती है। सो मेक श्योर कि आप अपना कैमरा प्रॉपर स्टेबल रखें। थर्ड इज पोजिशन ऑन द स्क्रीन। मेक श्योर दैट व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, हेड के ऊपर आपके एटलीस्ट 2 इंचेस का डिफरेंस होना चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आईपैड रखा हुआ है, अगर मैं मूव करूं इसे तो ये प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं होगा, राइट। एंड व्हेन आई एम सिटिंग हियर, तो मेरे लेफ्ट साइड में भी स्पेस है, मेरे राइट साइड में भी प्रॉपर, यू कैन सी मी इन द मिरर, मेरे ऊपर में भी स्पेस है। तो काफी लोगों का हेड कट जाता है, इफ यू आर सिटिंग लाइक दिस, अगर आप साइड हो, आप दिखते नहीं हो। सो मेक श्योर कि आपकी जो पोजीशन है स्क्रीन पे वो बहुत स्टेबल है। ओके, सो इस सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अलॉन्ग विद दिस, आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। एंड इवन जो आप ड्रेस का कलर होता है, वो बैकग्राउंड का कलर एंड ड्रेस का कलर, यू कैन कीप इट इन कॉन्ट्रास्ट। ओके, सो ये सारी चीजें अब मैंने जो भी बताया, एनी ऑफ द थिंग्स जो टैलेंट राउंड की रिगार्डिंग, गाइस किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछो, उसके बाद में आगे बढ़े वन बाय वन। गाइस किसी को भी टैलेंट राउंड के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे एक बार प्लीज मेक श्योर कि आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हो। एनीवन? एवरीबडी अंडरस्टूड? 3 टैलेंट राउंड होने वाले हैं आपके, यू आर क्लियर फॉर दैट? यस मैम इसमें ग्रैंड फिनाले भी होने वाला है, सेमी फिनाले एंड ग्रैंड फिनाले। यस, वो फर्दर आपके ट्रेनिंग सेशंस, टैलेंट राउंड्स इन सब के बाद आपको बताया जाएगा। ओके ओके, वंस आप एक बार, अभी जो फर्दर जिस चीज की आपको प्रिपरेशन है वो है टैलेंट राउंड जो आप अटेंड करने वाले हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी वन ऑफ यू, किसी को भी कोई क्वेरी है तो प्लीज डू आस्क मी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू 3 टैलेंट राउंड्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टैलेंट राउंड आपको प्रॉपर इस रिगार्डिंग समझा दिया गया। एंड आपको जो पीडीएफ भी शेयर की जाएगी उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होंगे तीनों टैलेंट राउंड्स में, आपको किस किस चीजों पे जज किया जाएगा, किन चीजों पे, एंड क्या आपको करना है। सो इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या किस चीज पे आप प्रिपरेशन करते हो। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन। गाइस मैं आप सभी को मैं म्यूट कर रही हूँ एंड आप अगेन अनम्यूट कर रहे हो अपनी साइड से। मेक श्योर यू आर अनम्यूट। Yes, Beauty Parveen, are you saying something? Beauty, आप कुछ बोल रहे हो? Okay, so I think I should proceed further now. Hello. Sorry. Yes, Advaita.
Please Ma'am, tell me. in the second or third day of the talent round, we will wear something else for the talent round. We will wear that only for the ramp walk. Yes, yeah. हाँ Whatever dress जी you're wearing for the first talent round, make sure that you're wearing any kind of, beauty. Please, just mute yourself for a few minutes. It's very distracting, guys. Please. Okay, so Advaita, for the first talent round, guys, make sure everybody that you're not wearing any kind of frill dresses or something. Cause in second and third talent round, वो vary कर सकता है depending on your talent. If you are representing your state, तो it would be a cultural और कोई ऐसी dresses, so of course उसमें रैंप वॉक क्लियर. तो फर्स्ट टैलेंट राउंड में प्राइमरली आपको जज किया जाएगा रैंप वॉक की बेसिस पे. सो आपका ड्रेस उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए. सेकंड एंड थर्ड टैलेंट राउंड इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर. राइट, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या वेयर करने वाले हो, आप क्या टैलेंट शोकेस कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है. एंड इन द सेम ड्रेस यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर रैंप वॉक आल्सो. ओके अद्विता, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. Okay, guys. So I'll proceed further. Then everybody's on mute. So now, yes. So, ma'am, in the state representation round, it's like I am from some other state. However, I'm living in some other state for my job purpose. So, what state should I represent in the application State form which itself? you are going to represent at a state or national level. You have to represent that state. For example, if I am basically from Bihar, but I'm staying in Delhi, so depends on me if I'm going to represent Delhi at national level or Bihar at national level. वो फर्दर आप पे डिपेंड करता है which state are you going to represent further. आप उसी स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे. Okay, so it does not matter what we have filled in the application form. Of course, that matters. What you have filled in an application form, that matters. If you have filled the same state, you are going to represent that state itself, right? Sure. Okay. Which state have you filled in your form? So I have filled that I'm from like Bangalore. However, my actual state is Uttar Pradesh. Like I'm living in Bangalore for work. Okay, so which state are you going to represent further if you get selected for nationals? Which state would you be representing? UP itself, Uttar Pradesh. Okay, so of course you'll have to represent UP. That's why, right? Okay, but if it's a conflict, I can represent the Karnataka as well. No worries. You can get in touch with your account manager regarding that. They'll guide you further. Okay, sure. If you want to change your state, yeah. Okay, guys. Is that clear to everybody now? So let's move forward. Now, I want to primarily talk about very important aspects. कि वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपना मार्क बना सकते हैं किसी भी पैजेंट्री में. पहली बात तो आपको ये समझना है कि एवरी पैजेंट्री इज डिफरेंट. अगर आप प्राइड ऑफ इंडिया में आए हैं तो आपको प्राइड ऑफ इंडिया का एक फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे विनर्स को सिलेक्ट करते हैं एंड उन्हें किस तरह से एस्टैब्लिश करते हैं. So trust me, it's a very promising platform. It's going to take you to a higher level from where you are today. अगर आप आप अगर स्टेप 1 पे हैं, आगे जाकर आप जीते या ना जीते, आपकी जो जर्नी होने वाली है, जो ट्रेनिंग्स आपकी होने वाली हैं, जो एक्सपोजर्स आपको मिलने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू टेक यू मेनी स्टेप्स फर्दर. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो आज मैं आप सबके साथ वर्चुअल प्रेजेंस, एज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And you all know that your competition till city level is going to be online, and even the functions which will be happening for city winners, that too will be held online, right? So please understand the importance of virtual presence. So virtual presence की कुछ चीजें हैं, because आपका first talent round है regarding training sessions. I'm sure you guys would be sitting with a notepad and would note down the few things जो मैं आपको बताने वाली हूँ. Please make sure you're noting down the things. First is, please sit in ample light. There should not be any darkness. अगर आप बैठे हो, there should not be any darkness during your talent rounds. When you are sitting in front of camera, you should be bright and fresh. So उसके लिए क्या करना होता है, आप थोड़ा सा BB क्रीम लगा सकते हो, थोड़ा सा फाउंडेशन लगा सकते हो. I'm not saying full makeup, but एक light fresh लगने के लिए a little bit of gloss is needed, little tint of blush if you like. Okay, if you are okay with it.
You have to put on very light makeup जिससे आपका look बहुत enhancing लगे, बहुत fresh लगे. Your hair styling should be in such a way which should not cover your face, because we are here to appreciate your personality, and your personality comes out only when we look at your face. Okay, so style yourself in a manner, wear clothes which are bright and happening, crisp, clear and bright, because उससे आपका presence और better होता है. उसके पीछे जो आपका बैकग्राउंड है, नॉर्मली जैसे आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल सिंगल कलर सिंपल है, तो उसी तरीके से यू हैव टू चूज अ प्लेस इन योर हाउस विच इज क्लीन, विच इज स्मूथ, विच वुड लुक नाइस इन योर बैकग्राउंड. इट शुड नॉट बी अ डिस्ट्रैक्शन. इसलिए इट शुड नॉट बी अ डिस्ट्रैक्शन कि अगर आप मेंटोर्स से बात कर रहे हो, दे शुड नॉट फोकस ऑन योर बैकग्राउंड, रादर दे शुड फोकस ऑन यू, राइट. सो प्लीज फर्दर मेक श्योर दैट आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी, that is very important. बहुत लोगों के ऑडिशंस राउंड में भी नेटवर्क कनेक्टिविटी की इश्यूज आती है, अभी भी काफी लोगों के आ रही हैं. So find a place where you have the best network in your home and put yourself there, so that there is no lagging and no skipping of any information because of poor network. All right. So अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस वैसे अभी आते हैं, then please make sure you note it down and end में आप मुझसे पूछ लेना. Now, the next point is keep your language clean and clear. Language अच्छी रखिए, आप हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, just be comfortable. क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने के कोई एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं, अच्छी लैंग्वेज बोलने के मिलते हैं. हिंदी बोलिए, बहुत जोरदार बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए. अब जो भी लैंग्वेज आप चूज करें, जस्ट बी कॉन्फिडेंट. इट्स नॉट लाइक अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ही आपके जूरी मेंबर्स या जजेस इंप्रेस होने वाले हैं, नहीं. इट्स जस्ट लाइक हम सब आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने के लिए बैठे हैं, आपको जिताने के लिए बैठे हैं. तो अगर आपका पोटेंशियल हमें देखना है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके, अब आपको जैसे आपके टैलेंट राउंड के बारे में मैंने बता दिया, आपके फर्स्ट टैलेंट राउंड होगा, उसको ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है. जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, वी हैव ऑलरेडी टेकन योर इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग ऑडिशंस आल्सो. इंट्रोडक्शंस मैंने इन काफी लोगों से सेम क्वेश्चन ऑलरेडी किया गया है. So here during your audition, you have to go to the depth of introduction. That means you have to tell us why do you want to win the crown? What makes you think about the crown? Why did you join the pageant and where do you see yourself after this journey? That means आप crown जीतने के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? काफी लोगों से ऑडिशंस में भी क्वेश्चन की गई थी, but we didn't find correct answer and हमें वो आंसर में क्लैरिटी नहीं दिखी. So you have to give a brief introduction about yourself and about your dreams regarding the beauty pageant. Further, you have to tell about your ideal, जिन्हें देखकर आप crown imagine करते हो, who is your inspiration. Then you have to complete your ramp walk and please make sure you complete everything in the given time, whatever is asked. You have to be to the point because virtual presence is very limited. You have to understand this. It's a competition and we are gazing you that you are following our guidelines also. Also do not think that if you have got the chance to come on the screen, so you need to prove yourself everything before leaving. Negative marking bhi ki jayegi. So if you are eating the time that has been slotted for other candidates also, so you have to be responsible when you are coming on a virtual platform. So prepare a format. आप एक proper format prepare करो. कोई नहीं पूछेगा हमसे बीच में कि हम दिखाई दे रहे हैं या नहीं, मैम am I visible or not, should we start or not. The moment your name is called, that means you have to start. अब आप पहले रैंप वॉक करने वाले हैं या आप पहले इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, that entirely depends on you. ये प्रॉपर आप पे डिपेंड करता है. Where are you going to start from? You don't have to give any kind of excuses that I was busy throughout the day, so I didn't do this, I didn't do that. So please ma'am, just wait for 2 minutes. ये इससे क्या होगा, हम 2 मिनट वेट कर लेंगे, बट आपका वर्चुअल प्रेजेंस खराब होगा. So this is a starting basic information which I'm sharing with you. So आप लोग बहुत अच्छे से prepare करें and complete your introduction and ramp walk in a given time period. If you are going beyond that, then please understand, no matter how good your performance is, there is going to be negative marking also. Like when you all give your exams, of course there is a time limit for everybody to write the exam. Even if you know a lot, you do not get much time to write, keep writing, do you? You don't, right? So similarly, you have to finish in a given time period. Now,
virtual presence is important because if you are virtually dynamic on screen, if you are dynamic, if you look impressive, and when we find the talent inside you, that yes, if we send you to a state level, you can shine bright on stage. So आपका ट्रेनिंग सेशन हो या टैलेंट राउंड हो, आपको हर टाइम अच्छे से प्रिपेयर होकर ही आना है, क्योंकि आपको हम अभी से असिस्ट करना शुरू कर देते हैं. We keep noticing you from the very start till the end. Our team members are present there who notice you every time on the screen, even if you are not the one speaking, and they keep marking all these things. So अगर आप screen off करके बैठे रहेंगे, I don't think that's a good idea, right? So when you are on the screen, you should be seen, because all of you are participating, and this is a spotlight. It goes everyone to see that how are you all sitting in, and what are you doing. And when you switch off your screen, and then of course we mark you a negative point that you are present there but you are not visible clearly. So please understand these points. And now I would like to ask one thing in between this. What should we do to increase our self esteem? अगर आपको अपनी सेल्फ esteem बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए? Anyone? I would ask to girls quickly. Just raise your hand if you want to answer. What do you do to improve your confidence and self-esteem? Yes. आपका आवाज तो मिल जाएगा. Guys, I think there is somebody on unmute. Yes, Toshi. Ma'am, we should be confident Okay. of ourselves, especially of ourselves. Okay. Anyone else? Very good, Toshi. Anyone else? Okay. So आप अपनी self esteem improve कर सकते हैं. Start looking inward. आप अपने अंदर देखना start. Sorry. मैम मुझे बोलना था सेल्फ स्टीम के बारे में. Yes, please tell me. बताइए. Believe in yourself and keep learning. Yes, keep learning. That is very important. मैम मुझे कभी भी एक knowledge का कोई एक लिमिट नहीं होता. You have to be very consistent and आपको सीखते रहना है. You have to soak each and everything. Right. So, yes, as I told you, thank you so much. Yes, sorry. Be positive. Yes, you have to be positive. Very good. Anyone else? मुझे भी कुछ बोलना है. हाँ, yes, please tell me. मैम क्या हमें किसी को की बात करनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए बात करते हुए. Exactly, you have to be confident. Confidently आपको बात करनी चाहिए. Yeah, get to know yourself. Exactly. I have seen a lot of people, क्योंकि auditions round में भी बहुत लोगों को बोला जाता है कि आप clearly बात नहीं कर पाते अपने बारे में. So you have to be very confident. Want to first trust yourself. Yes, of course. First, you have to trust yourself that you can do it, right? And Very don't good, very compare nice. yourself to others. Sorry, I didn't hear. Don't compare yourself with others. Exactly, very true. There is no comparison between each one of any one of you. You have to compare yourself. You don't have to compare with anybody. What you are, you have to be very unique. आप खुद से अपनी comparison करो किसी और से. You don't have to compare from anyone. So what happens? आप खुद में start looking inward and start finding out what are your positive sides, what are your qualities, and which you think makes you positive, and what are the areas in which you think you need to work. And then start working on both of them, more on your strength and of course a little on your weakness, because over a period of time you're going to kill it. So because when we participate in a competition, we only show our strength. What is your strength? It can be the way you communicate, it can be your beautiful glowing complexion, your fitness, it can be your awareness. Okay, so all of these things come a long way. Secondly, do not fear failure. आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पार्टिसिपेट तो कर रही हूँ, अगर हार गई तो क्या. आज तक आई डोंट थिंक लाइफ में कोई भी ऐसा होगा जो हारा ना हो एंड जीतता गया हो. राइट. सो प्लीज डोंट एवर फियर फेलियर. फियर अगर हमारे हाथ लगता है, वी हैव टू लर्न लेसन्स फ्रॉम इट, दैट वी वोंट फेल द सेम वे अगेन. अब अगर हम ऐसा करते हैं, वो हमारा नेग्लेक्ट माना जाता है कि हमने ध्यान नहीं दिया.
कहाँ पे हमसे गलती हुई। अगर हम लेसन्स लर्न करते हैं, यू आर ओनली बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, right? There is nobody who has ever succeeded without failure, so please understand this. Now the other thing that I want to talk is how to become a winner, not in a pageantry but in everything. किसी भी चीज में अपनी पैजेंट से हट कर भी आप अपने लाइफ में हाउ कैन यू बिकम अ विनर, उसके लिए 3 बहुत ही इजी स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज, एज समबडी टोल्ड मी, बी ओपन टू लर्निंग. अगर आप पहले से किसी पैजेंट्री में पार्टिसिपेट, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपने पहले से भी किया होगा पार्टिसिपेट, सो प्लीज ये ना सोचे कि आपको तो सब कुछ आता है. अगर आपने पहले से ही किसी से ट्रेनिंग ली है, प्लीज ये ना सोचो दैट यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बिकॉज हर पैजेंट के अलग रूल्स होते हैं. हर पैजेंट आपसे कुछ ना कुछ अलग एक्सपेक्ट करती है, सो आपको उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. एंड आई थिंक जो इंसान अगर ये सोचता है लाइफ में मुझे तो सब कुछ आता है, सो वो ऑलरेडी एक डेड एंड पे खड़ा है, उसके आगे उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती. सो हमेशा थोड़े थोड़े स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते जाओ. इसी को सक्सेस स्टोरी कहते हैं. सो बी ओपन टू लर्निंग. जहां से जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, you have to absorb that. Be the sponge which can soak in a lot of knowledge, a lot of awareness, and then store it within. Second thing is be consistent. अगर आज मैंने आपको कुछ बताया, आपके दिमाग में वो चीजें आई, आपने वैसे ही किया. इसके बाद थोड़ा सा डिस्प आ गया, थोड़ा लेट हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, अच्छे से आप रेडी होकर नहीं बैठे, आप फ्रेश नहीं लग रहे हो, यू आर लुकिंग टायर्ड, एग्जॉस्टेड. सो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे चली जाती है, राइट? सो डोंट डू दैट. विनर्स का एक कॉमन ट्रेट होता है, वो कंसिस्टेंट होते हैं. एंड जो लास्ट क्वालिटी है, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक विनर की, दैट इज बी कॉम्पिटिटिव. When I say competitive, it doesn't mean कि आप बैक बाइटिंग कीजिए, किसी को लेट डाउन कीजिए, आपका थ्रोटिज्म दिखाइए अपने आप को बेटर प्रोजेक्ट करने के लिए. नो, you don't have to do that. What I want from you is a healthy competition. All of you here sitting on this screen, हर किसी को स्माइल करना है. You have to smile. जब किसी की परफॉर्मेंस होती है, you have to clap for them. If somebody is doing nice, just give them a compliment and उनकी अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए. अगर हम हर किसी को एक इंस्पिरेशन माने एंड उनकी अच्छी चीजों में हम इन्वॉल्व होने लग जाएं उनके साथ, then give yourself some months and you will realize how better you have become as a person. And these are the 3 main qualities which definitely a winner has. First, you should be open to learning, competitive, and you have to be consistent. Okay, so I think these were the very important topics. So first was all 3 talent rounds, and then किन चीजों पे आपको वर्क करना है रिगार्डिंग बीट योर नेटवर्क कनेक्टिविटी, आपका पोजीशन स्क्रीन पे, बैकग्राउंड, इन सब चीजों का मेक श्योर कि आप ध्यान रखोगे ड्यूरिंग योर टैलेंट राउंड्स. ओके, क्योंकि अभी जो भी चीजें मैंने आपको बताई ये बेसिकली टैलेंट राउंड की ही रिगार्डिंग थी, सो दैट आपको टैलेंट राउंड में आगे जाकर भी सिटी, स्टेट, नेशनल में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. So I think आपको एक pride, when you are here on Pride of India, you have got a formative knowledge and formative information of this platform, right? Now, anybody, if you are having any problem, please do ask me. And I think it's anyone. Yes, hi. जैसे कि आपने बोला ना कि हर जो करते पहले किसी ने किया होगा, तो हर जगह से एक अलग नॉलेज मिलता है. you're right. क्योंकि मैंने भी 2 शो किए हैं, तो उसमें क्या हुआ ना, सब चीजें अलग अलग होती है, उनके स्टेप अलग होते हैं, आपके अलग होते हैं. कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है तो हमें ध्यान नहीं देना है. आपने एकदम सही बात बोली है. Exactly, क्योंकि बहुत I have seen a lot of people, बहुत लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस होता है, they used to write to our team managers that हमने already training sessions attend किया है. I said at least guys, each and every pageant ही नहीं, किसी भी फील्ड में आप जाओ, हर जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अलग हैं, अलग होते हैं, राइट? अगर आप इस पेजेंट में वो यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अलग है, किसी और प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अलग होगा. यू कैन नॉट कंपेयर एनी प्लेटफॉर्म्स, राइट? सो अगर आप यहाँ, इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग हियर, आपको यहाँ का फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपको यहाँ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जा रहा है. जी, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मिलता है ना कि हमने पहले वहां पे किया,
उधर थोड़ा अलग है, इधर थोड़ा अलग है, अभी हम नेक्स्ट टाइम थर्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ अलग एक्सपीरियंस, मतलब सीखने की उम्र कभी नहीं खत्म होती है। आपको जिससे जो सीखने के लिए मिलता है, एज मैटर नहीं करती है कि सीखने के लिए कि छोटा है मैं उससे क्यों सीखूं, किसी से भी आप कुछ भी सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स आप किसी भी, आप कल को आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहां आपको रूल्स अलग मिलेंगे, वहां का अलग सारा प्रोसेस आपको अलग होगा, वहां से आपको कई नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं जो आपको जी। शायद यहाँ से ना मिले। सो इट्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ से क्या नॉलेज गेन करते हो। हाँ जी। और जैसे कि लोग विनर बनते हैं, काफी लोग हमारे फ्रेंड्स हैं जो हम विनर बने हैं, तो उनको देख के कुछ लोग ऐसे चिढ़ते हैं ना, वो चिढ़ना नहीं चाहिए। आपको ना खुद की कमी देखना चाहिए कि हाँ, मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, नेक्स्ट टाइम मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगी और रेडी होके नेक्स्ट बार मैं ट्राई करूंगी। हमेशा ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना जरूरी है, Yes, you have हारना to नहीं। learn from, अगर आप सामने वाले को, आपको लग रहा है आपके फ्रेंड है, शी इज टैलेंटेड, you have to learn something from यस। them, आपको उनसे सीखना चाहिए, you have to और gain their qualities. हम जहाँ भी जाते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे सब अपने फ्रेंड्स के जैसे ही उनको देखो। अगर आप उनसे कुछ सीख सकते हो तो सीखो, जरूरी नहीं कि जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वही फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड आप दिल से किसी को मानो तो वो सब फ्रेंड्स होते हैं। Exactly. See, everybody, when you are here, we all are a part of DK pageant. DK pageant is like हम सभी beat any season, हमारा कोई भी season हो, यहाँ पर आने के बाद each and everybody you are a part of DK pageant. You guys, everybody is like a family members. Yes, हो सकता है आगे जाके आप में से ही कोई एक विनर बनेगा, बाकी लोग शायद विनर ना बने, but that doesn't mean कि आप उस फैमिली के, स्टिल आप उस फैमिली के पार्ट रहोगे. You will be a part of DK pageant even if you are not the winner, right? So you have to be very, just be competitive. Yes, competition है, आपको अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करना है, ना कि किसी और से आपका कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे. इट्स अ कंपटीशन बट नो कंपैरिजन बिटवीन एनी वन ऑफ यू. प्रॉपर आप पे डिपेंड करता है आप क्या टैलेंट शोकेस कर रहे हो, आप किस तरीके से, आपका बिहेवियर कैसा है. बहुत सारी चीजें होती हैं when you are in a pageant, guys. Trust me, हो सकता है दूसरे पेजेंट्स दे डू नॉट से दिस, बट यस, इट्स रियलिटी कि आपका बिहेवियर भी मैटर करता है. आप किस तरीके से हमारे टीम मेंबर्स के साथ बिहेव करते हो, आप किस तरीके से दूसरे कंटेस्टेंट के साथ बिहेव करो, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स, ट्रूली मैटर्स. व्हेन वी चूज अ विनर, हम उसमें वो सारी क्वालिटीज खोजते हैं, ढूंढते हैं, उनमें सारी क्वालिटीज देखते हैं, राइट? सो जस्ट बी कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिशन है, सभी के साथ आप अपना बेस्ट करो, एंड देन ऑफ कोर्स you guys are going to be a winner, so don't worry. And yes, आगे जाकर आपकी नैना, are you saying something? जी मैम, एक्चुअली मैं बाहर थी और मुझे इसका रिकॉर्डिंग करने को मुझे प्रोवाइड नैना, आई थिंक हमारी YouTube पे इसकी एक रिकॉर्डिंग पहले की भी होगी, और अदरवाइज ये भी रिकॉर्डेड है. सो अगर टीम इसे YouTube पे अपलोड करती है तो आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा. ओके? यस, आप लोग सभी के साथ आप एटलीस्ट एक बार अपनी सभी जिनकी भी जो टीम मैनेजर्स है, आप उन्हें PDF मेंशन कर देना दैट प्लीज शेयर मी द PDF. काफी लोगों का ऑफ कोर्स मिस हो जाता है, दे हैव अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स टू हैंडल, तो वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं हो जाती है. मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से थोड़ा अपनी साइड से आप एक बार मेंशन कर देना कि मैम प्लीज शेयर मी द PDF, वो आपके साथ PDF शेयर कर देंगे. ओके? Excuse यस कल्पना, आर यू आस्किंग समथिंग? जी मैम, मैम मुझे पहले आपके लिए बोलना है, आप बहुत बहुत प्यारी लग रही है, आपकी वॉइस बहुत ही थैंक यू ज्यादा सो मच sweet है। कल्पना. और मैम, आप मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन आपने जितना भी आज हमको टीच किया वो बहुत अच्छा लगा और बहुत मतलब समझ में भी आया कि क्या है क्या नहीं। और बहुत प्यारी हो आप सच में। थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स मैं आप सभी को ये चीजें बताने, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बहुत ऐसा नॉलेज है, बट यस, इस मेरे प्लेटफॉर्म के लिए मुझे जो भी नॉलेज है वो चीज ऑफ कोर्स मैं आपके साथ, एंड जी ज्यादा भी मैम, मुझे आपने एक्सपीरियंस बहुत नहीं है बहुत इस फील्ड में, स्वीटली ऑफ कोर्स. बहुत ही जी मैम, आपने बहुत स्वीटली मतलब समझाया और बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है यार टीचर होता कोई तो बड़ा मजा आता पढ़ने में। 1 घंटा कैसे निकल गया, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत प्यारे हैं आप। ऑफ कोर्स आगे आपकी आपकी पूरी वॉइस जर्नी में बहुत सेशंस ऐसे होने वाले हैं, बहुत से ट्रेनर्स आने वाले हैं जो आपको ऑनबोर्ड, जो आपको गाइड करते हैं, प्रॉपर बहुत चीजें सिखाने वाले जी हैं. मैम, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको ये सोचकर नहीं चलना है कि आई हैव टू विन. ऑफ कोर्स जीतना आप में से, अगर आप मेहनत करो, यू आर गोइंग टू बी अ विनर, बट जी यू हैव मैम, टू आप अगर आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि आप जो सेशन में आपको बताया जा रहा है वो आप सीख रहे हो प्रॉपर, ये बहुत मैटर करता है, राइट? जी
Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, all the best for your upcoming training sessions and talent rounds. And thank you so much for joining DK Pageant. इस प्लेटफॉर्म को ऑफकोर्स पूरे सीजन का फेस आप लोग हो, सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एंड आई वुड मीट यू ऑल इन योर talent rounds now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much, everybody. All the best. Thank you so Okay, much. thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.